کیا بیماریاں اب آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گی؟ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ موت کا انتظار کرنے والوں کے لیے امید کی ایک کرن اور انوکھا راز، رجال الغیب کے بادشاہ کا عطا کردہ ایک عمل، جسم سے بیماریوں کو نچوڑنے والا ایک عمل دینا چاہتا ہوں، اور وہ میرا نہیں ہے۔ تجربات، مسلسل تجربات، پھر مسلسل تجربات کے بعد سال ہا سال اور صدیوں سے آزموتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل شانہ نے اس نظام کائنات میں مخلوق کے ذمہ مختلف ڈیوٹیاں، مختلف کام، مختلف امور سپرد کیے ہیں۔ بارش برسانے کے لیے فرشتہ مقرر کیا، روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ مقرر کیا، وحی لانے کے لیے بھی ایک فرشتے کا انتخاب کیا، یہاں تک کہ انسانی آنکھ کی حفاظت کے لیے ایک نہیں کئی فرشتے مقرر کیے۔ اس طرح اللہ جل شانہ نے انسانوں سے بھی کچھ لوگوں کا انتخاب فرمایا جو اس دنیا میں اس کی منشا اور حکم کے مطابق مختلف امور سر انجام دیتے ہیں، مخلوق کی خدمت اور داد رسی کرتے ہیں، لوگوں کو مشکلات اور مسائل سے نکالنے کا طریقہ بتاتے ہیں، بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھاتے ہیں۔ ہاں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، قرآن کہتے ہیں اللہ جسے خود چاہتا ہے اپنے حضور منتخب فرما لیتا ہے۔ آج آپ کو اللہ کے انہی خاص بندوں میں سے ایک ہستی جنہیں رجال الغیب کا بادشاہ کہا جاتا ہے، ان کا ایک واقعہ سناؤں گا، ان کا ایک خاص عمل عطا کروں گا، اور وہ جس سے انشاءاللہ آپ کو زندگی میں راحتیں، خیریں، خوشیاں اور برکتیں ملیں گی۔ یہ رجال الغیب کون ہیں؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ فرمان اس کی حقیقت جاننے کے لیے پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو قلابہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ہمیشہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے جب بھی کوئی چیز مانگتے ہیں اللہ انہیں عطا فرما دیتے ہیں، انہی کے ذریعے ہماری مدد کی جائے گی، انہی کے ذریعے تم پر بارش برسائی جائے گی۔ اور راوی بیان کرتے ہیں میرے خیال میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انہی کے ذریعے تم سے مصیبتوں کو ٹالا جائے گا۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ابن مبارک، ابن راشد نے بیان کیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا ہر صدی میں میری امت کے بہترین لوگ 500 ہیں اور ابدال 40 ہوں گے، بس نہ تو 500 میں کوئی کمی واقع ہوگی نہ 40 میں۔ جب کبھی کوئی آدمی ان 40 میں سے فوت ہو جاتا ہے تو اللہ جل شانہ 500 میں سے کسی کو اس کی جگہ پر بدل دیتے ہیں اور اسے 40 لوگوں میں شامل کر دیتے ہیں۔ جو شخص ان پر ظلم کرتا ہے اس سے درگزر فرماتے ہیں، جو ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، جو کچھ رزق اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے اس سے آپس میں ایک دوسرے کی داد رسی کرتے ہیں۔ حدیث کے بہت طاقتور الفاظ ہیں، بہت طاقتور روایات ہیں۔ حضرت حسن بصری بیان فرماتے ہیں یہ زمین کبھی بھی 70 صدیقین سے خالی نہیں ہوگی۔ وہ ابدال ہیں، ان میں سے کوئی آدمی فوت نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ جل شانہ اس کی جگہ اس طرح کا کوئی بندہ لے آتے ہیں، ان میں سے 40 شام میں ہیں اور 30 باقی تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک بہت بڑی حدیث کا حوالہ ہے کتاب کا۔ آئیے اب آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں جسے یقیناً سننے کے لیے آپ بے تاب بیٹھے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم ایک مرتبہ طرطوس کی طرف جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔ میں ایک دستے کے ساتھ نکلا، میرے پاس ایک سواری تھی جس پر مجھے بھروسہ تھا، لیکن میرے ساتھ دوسری اضافی سواری نہ تھی۔ راستے میں میرا گھوڑا بیمار ہو کر گر پڑا، میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور دوران سب لوگ آگے چلے۔ اتنے میں ایک شخص میرے پاس سے گزرا، نہایت چہرہ حسین، خوبصورت، خوشبو، پاکیزگی اور حیرت انگیز دنیا۔ اس نے کہا اے ابن مبارک، یہاں تمہیں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے؟ میں نے کہا میں اپنے گھوڑے کے بارے میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوں، اللہ کی مدد کا انتظار کر رہا ہوں، اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا تم چاہتے ہو تمہارا گھوڑا کھڑا ہو جائے؟ میں نے کہا مجھے یہ کہاں نصیب ہو سکتا۔ اس نے گھوڑے کے قریب آ کے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، آہستہ آہستہ اس کے پچھلے حصے تک ہاتھ لے گیا، کان سے، پیشانی سے لے گیا اور یہ کلمات کہے أقسمت عليك أيتها العلة بعزة عزة الله وعظمة عظمة الله وبجلال جلال الله وبقدرة قدرة الله وبسلطان سلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلم من عند الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله إلا انصرفت۔ یہ کلمات آپ دیکھیں
ताकतवर कलिमात, ऐसे अनोखे कलिमात हैं कि आज के दुखों भरी दुनिया के लिए इससे बढ़ के कोई कलिमात नहीं। इसका तर्जमा आपने देख लिया, आप आगे सुने। ये कलिमात कहती, घोड़ा उछलकर खड़ा हो गया और झटक कर सेहतमंद हो गया। उस शख्स ने मेरी रकाब पकड़कर कहा, सवार हो जाओ। मैं सवार होकर अपने साथियों तक पहुंच गया। इस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया, यह इंसाफ नहीं कि दुश्मन की सरजमीन में ऐसे नेक शख्स को अकेला छोड़ दूं, बेहतर है उसे भी अपने पीछे बिठा लूं। फिर मैंने सोचा, जिसने मुझे अपनी दुआ की बरकत दिखाई है वो खुद भी अपनी हिफाजत पर कादिर है। अगले दिन अल्लाह ने हमें दुश्मन पर गलबा अता किया। इस दौरान वही शख्स मेरे सामने आया, हमें दुश्मन के ज़खायर की निशानदही करता था, खतरात से खबरदार करता था, मुश्किलात को आसान बना देता। अल्लाह अकबर। मैंने कहा, क्या आप वही हैं जो कल मेरे साथ थे? कहा, हाँ, मैं वही हूं। मैंने कहा, तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं, सुभान अल्लाह, बताओ तुम कौन हो? ये सुनकर वो खड़े हो गए तो जमीन उनके नीचे सरसब्ज और शादाब हो गई। उन्होंने कहा, मैं खज़र हूं अलैहिस्सलाम। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमुल्लाह फरमाते हैं, मैंने जब भी यह कलिमात बीमार पर पढ़े सेहतयाब हुए, सिवाय इसके जिसकी मौत का वक्त आ चुका था। अबू बकर बिन मुजाहिद ने अपनी किताब के हाशिए में इस रिवायत के बारे में लिखा है कि बहुत उम्दा रिवायत, जो शख्स रोजाना सुबह शाम कम से कम 3 बार इस दुआ को पढ़ने का मामूल बना ले, लाइलाज बीमारियों के लिए, सेहत के लिए, अटके हुए कामों के लिए, मुश्किलात नाकामियों के लिए, या ऐसी बीमारी जिसका ताल्लुक जादू से है, जिन्नात से है, नजर बद से है, या जादू जिन्नात नजर बद नहीं बीमारी है, इंशाल्लाह उसे शिफायाबी मिलेगी। आप कोई दवा खाएं, ये दुआ 1 बार पढ़ लें। आप कोई ग़िज़ा खाएं, ये दुआ 1 बार पढ़ लें। आप इस दुआ को सुबह शाम 40 बार पढ़ लें, 11 बार पढ़ लें, कम से कम 3 दफा पढ़ लें। इसको जिंदगी का हिस्सा बनाएं। ये बहुत बड़ा भेद है जो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिला, और एक बहुत बड़े मुहद्दिस अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमुल्लाह को यह भेद आज पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह आम हो गया। अब कोई दुखी नहीं रहेगा, अब कोई परेशान नहीं रहेगा। सब सुखी हो जाएंगे, राहत पाएंगे, रहमत पाएंगे, बरकत पाएंगे, अता पाएंगे, आफियत पाएंगे। जरूर तवज्जो करें, लोगों में फैलाएं, ये दुआ लोगों को बताएं। अपनी रूहानी दुनिया और जिस्मानी दुनिया का खूब ख्याल कीजिएगा। कायनात राजों में छुपी है, तिब सेहत के राज, रूहानियत के राज, कायनात के राज। अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने राजों से पर्दे हटाए हमारी सेहत, तंदुरुस्ती और हमारी खैर और बरकत के लिए। कि फितरी जिंदगी, फितरी ग़िज़ाएं, फितरी दवाएं, जिसको आज के जदीद अल्फाज में ऑर्गेनिक, नेचुरल और न मालूम क्या क्या अल्फाज दिए जा रहे हैं। क्या पहले वक्त में चमड़ा इस्तेमाल होता था, छूट गया, उसकी जगह रबड़ ने ले लिया, और रबड़ के रेक्सीन समेत कई नाम मखलूक ने थक हार कर वापस चमड़े को लिया। अब उसे लेदर का नाम दिया गया। पहले लोग सूती कपड़ा इस्तेमाल करते थे, बीमारियां, दुख, तकलीफें नहीं होती थी, मगर फिर तरह तरह के लिबास जिंदगी का हिस्सा बने और फिर लोग दोबारा वापस सूती कपड़े की तरफ लौट आए, लेकिन नाम कॉटन का लिया। इस तरह जिंदगी के हर मोड़ में हम वापस फितरत की तरफ लौट रहे हैं और फितरत हमारा साथी बन रही है। हम फितरत की तरफ वापस लौटें, और कैसे लौटें, मैं आपको एक अनोखा रास्ता और अनोखा तरीका बताता हूं। एक हिंदू साधु था जो जंगल में रहता था। वो साल के बाद सिर्फ 1 माह के लिए शहर में आता था, जिसे जूनपुर के नाम से जाना जाता था। वहां लोगों का हुजूम पहले से उस हिंदू जोगी का मुंतजिर होता था। उसके पास मुख्तलिफ जड़ी बूटियां जिसे वो जंगल से तोड़ के लाता था, उसे मखसूस अंदाज में खुश करता। मुख्तलिफ बीमारियों में घिरे लोगों को, किसी को कोई बूटी, किसी को कोई फूल, किसी को कोई फल, किसी को पत्ते, किसी को छाल, और लोग वाकई हैरत अंगेज तौर पे सेहतमंद हो जाते। बड़े बड़े राजा, महाराजा, महारानियां, राजकुमार, राजकुमारी, नवाब, दौलतमंद लोग इस बंदे का इंतजार करते। वो साधु जंगलात से कुदरत के राज तलाश करता और उन लोगों को देता जो कुदरत के राजों से महरूम है। और यही सच है कि कुदरत के राज ही असल जिंदगी है, और जो कुदरत के राजों से महरूम है उसकी कोई जिंदगी नहीं है। इस साधु के पास एक बारीक दाने होते थे जिनके ऊपर छिलके होते थे। उसके पास एक मखसूस बीमारियों के मरीज आते तो उन्हें मुट्ठी भर दे देता, किसी को 2 मुट्ठी, किसी को 5 मुट्ठी, किसी को 1 मुट्ठी। तरीका बता देता कि कोई इस बूटी को पहचान नहीं सकता था कि यह है क्या। लोगों को सेहत मिलती, तंदुरुस्ती मिलती। जिनको इन दिनों में जो साधु मिल जाता ठीक, वरना लोग साल भर इंतजार कर। दूर परे से लोग घोड़ों पर, ऊंटों, खच्चरों, गधों, पैदल या कोई सवारी करके उस साधु से मुलाकात करते। वो पैसे नहीं लेता था,
जितना कोई दे देता कबूल कर लेता था। एक साहब ने अजब काम किया, वो साधु के साथ जंगल में रहने लगा, उसकी खिदमत करने लगा, उस पर बहुत माल खर्च किया, खिलाया पिलाया, हत्ता कि उसका नौकर और खादिम बन गया। पूरा 1 साल उसके साथ रहा। 1 साल के बाद उसके ऊपर यह राज खुला कि वो दवा, वो दाने और वो छिलके हैं क्या? पता चला कि वो तो पनीर डोडी है। ये पनीर डोडी है, ये पनीर डोडी है, वो तो पनीर डोडी है, बिल्कुल आम, बिल्कुल सस्ती सी, बाजार में मिलने वाली। आप अगर 1 किलो ले ले तो साल भर खत्म नहीं होगी। इसके बाद उस शख्स को एहसास हुआ, इतनी सस्ती सी दवा साधु क्या करता, उसे दोनों हाथों से अच्छी तरह कुचल देता, उसकी असली हालत खत्म हो जाती, सिर्फ दाने और छिलके बाकी रह जाते ताकि कोई पहचान न सके। आइए मैं आपको उसके फवायद बताता हूं। साधु जिन बीमारियों के लिए उनको इस्तेमाल कराता था उनके फवायद सुनते जाएं। नंबर 1, पुरानी शुगर जो खत्म ना हो रही हो, इंसान आजिज आ गया हो, थक गया हो, हत्ता कि इंसुलिन नाकाम हो गई हो और इंसान रोज बरोज घुलता चला जा रहा हो। नंबर 2, शुगर यहां तक पहुंची हो कि पांव या जिस्म का कोई हिस्सा काटे बगैर गुजारा नहीं, इंसान मरहमें पटियां थक चुका हो, इसके लिए बहुत जबरदस्त चीज है। नंबर 3, चेहरे के दाने, कील मुहासे, छाइयां, स्याह दाग, उनके लिए बहुत ही लाजवाब चीज है। और नंबर 4, तमाम जिस्म फोड़े फुंसियां खत्म न होती हों, बड़ी बड़ी गोलियां अद्वियात नाकाम हो चुकी हों, उसका असर, नतीजा और कमाल देखें फिर। नंबर 5, चंबल, सोराइसिस, ऐसी बीमारी जो किसी हद तक या बिल्कुल खत्म ना हो रही हो, इसका नतीजा यही है कि अद्वियात खा खा कर बीमारी और लग जाती है, उसके लिए बहुत लाजवाब है। नंबर 6, जिसके पांव बदनुमा हों, हाथ पांव के दाग ना जाते हों, जो लोग अपने हाथ पांव को खूबसूरत बनाना चाहते हैं उनके लिए लाजवाब टॉनिक है। नंबर 7, जिसके नाक पर अक्सर दाने, नाक बहुत बदनुमा भद्दी हो, उसके लिए तजर्बाशुदा है। नंबर 8, मसूड़ों से खून आता हो और दानों के अंदर पीप पड़ गई हो और बहुत जबरदस्त, उसके लिए फायदेमंद है। नंबर 9, गर्मियों में जिनके दाने निकलते हों, खारिश हो, जलन हो, सोजिश हो, उसका इलाज है और कामयाब इलाज है। नंबर 10, जिन लोगों को पुरानी खारिश, हत्ता कि ऐसी पुरानी खारिश के पूरा घर खारिश में मुब्तला हो, वो तसल्ली से इस्तेमाल करें। नंबर 11, यूरिक एसिड के मरीज थक गए हैं, यूरिया के मरीज उकता गए हैं, कोलेस्ट्रोल की अद्वियात नाकाम हो गई हैं और खून से ये जहरीले मादे नहीं जाते, आप बस इस बूटी को साथ लें, इसके फवायद को आंखों से देखें। और नंबर 12, पुरानी कब्ज, पेट के कीड़े, इससे खत्म हो जाते हैं। जो चाहता है कि पेट बढ़ना बंद हो जाए, हत्ता कि मोटापा खत्म हो जाए, वो भी इससे शिफा पा सकता है। आप चेहरे की रंगत को हमेशा खिलता फूल की तरह महसूस करना चाहते हैं और वक्त से पहले बुढ़ापा ना हो और चेहरे की रंगत शफाफ हो, हुस्न हो, जमाल हो, खूबसूरती हो, उसके लिए बहुत ही लाजवाब चीज है। पुरानी बवासीर के लिए जो कब्ज की वजह से हो या मौरूसी हो, उसके लिए लाजवाब ये टोटका है। आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे आपके इसके बहुत ज्यादा नताइज, हैरत अंगेज नताइज और कमालात खोलेंगे। आप महसूस करेंगे ये अनोखी और सस्ती शिफा, हत्ता कि जिनकी आंखें सूज जाती हैं और सुबह उठते ही आंखें बंद हो जाती हैं, यानी खुलती नहीं, बड़े हैं या छोटे, कान की खुजली है, खारिश है, खुजा खुजा कर जख्म हो गया है, उससे भी बहुत फायदा होता है। और बाज लोगों को नासूर या ऐसे जख्म जो खत्म ना होते हों और ऑपरेशन के दौरान लगने वाले टांके गल गए हों, पीप आती हो, खराब हो गए हों, इस मसले के भी इसका नतीजा बहुत जबरदस्त है और इसके कमालात बहुत लाजवाब हैं। आइए मैं आपको इस टोटके का तरीका बताता हूं। पनीर डोडी हर हर्बल स्टोर, पंसारी की दुकान से मिल जाती है। इसके सिर्फ 21 दाने, इसके सिर्फ 21 दाने आप ले लें, हाथों से अच्छी तरह इनको कुचल लें। ऐसे हाथ लेके अच्छी तरह हाथों से कुचल कर 1 कप गर्म पानी में इनको डिबो दें, ऊपर ढक्कन दे दें। सुबह उठकर ये अच्छी तरह फिर मलें। आप इसके 2 तरीके हैं, चाहे तो इसका निथरा हुआ पानी पी लें, चाहे तो खुद वो डोडी समेत आप इसका पूरी दवाई भी साथ पी लें। अगर मौसम सर्दी का है तो इसको गर्म कर लें, अगर गर्मी का मौसम है तो ताजा ही पी लें। इसी तरह सुबह भिगोएं, शाम पिएं, शाम भिगोएं, सुबह पिएं, दिन में 2 मरतबा। फायदा ज्यादा होगा, आप 1 मरतबा भी कर सकते हैं। पुरानी लाइलाज बीमारियां जिनमें खून के अंदर तरह तरह की बीमारियां शामिल और ऐसे मवाद जिनको कभी यूरिया, कभी यूरिक एसिड, कभी शुगर, कभी कोलेस्ट्रोल, कभी हेपेटाइटिस, इस तरह की चंद दिन चंद हफ्ते इस्तेमाल करें। बहुत कमाल चीज है, संभाल के रखिएगा और इसके कोई मुज़र असरात, साइड इफेक्ट नहीं है। इंतहाई लाजवाब चीज, नस्लों के काम आएगी और नस्लें सेहतमंद होगी। आइए इस तोहफे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं
اور اس तोहफे को दूर ना करें। क्यों? ये कुदरत का तोहफा है जिसमें कोई केमिकल नहीं, जिसमें कोई खाद नहीं, जिसमें कोई स्प्रे नहीं, कुछ भी नहीं है। इंशाल्लाह सेहत जिंदगी आपका साथ देगी। जुमे का दिन था, सुबह सुबह आके किसी ने दरवाजे पे आवाज दी। मैं पहचाना कि वही बंदा है। वो आवाज लगा रहा है कोई इस ऊँटनी को खरीद ले, चाहे उधार पे ले ले और मैं उससे पैसे बाद में ले लूं। कहा उसने 800 दिरहम की। देखा ना तो एकदम परेशान हो गया। मैंने कहा कहीं ये मर ना जाए। मेरे दिल में आवाज आई, मेरे बंदे बिन मांगे रिस्क मिल रहा है, कदरदानी कर, ले ले। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया। मैं बसरा में उनके पास हाजिरी मेरी हुई। एक शख्स हाजिर हुआ तो अर्ज कहने लगा, शेख घर में फक्र और फाका है। लेकिन उसने जो पहले लफ्ज़ कहे थे वो लफ्ज़ कुछ और थे कि शेख मेरे घर में चींटियाँ और मकोड़े कीड़े नहीं हैं। तो इस बात की दलील है घर में कोई ज़रा ही नहीं गिरता, इतना फाका है। मकोड़े ज़र्रे मेरे घर में नहीं हैं, मेरे लिए कुछ कीजिए, मेरे लिए कुछ कीजिए। तो सरकार का फरमान है, सरकार का फरमान है कि अच्छा ऐसा है कि कल आना। वो कल आया। उसने अपनी ज़ुबहुल आली की दास्तान उससे बदतर सुनाई। कितने फाके हैं, घर में मशकीज़ा है वो भी फट गया है, उसको पैमद लगा लगा के थक गया हूँ, मशकीज़े में पानी नहीं रहता, मेरे घर में पानी का खतरा भी नहीं, मेरे घर में दाना भी नहीं, मेरे घर में जौ भी नहीं, मेरे घर में कोई पनीर भी नहीं, मेरे घर में कोई जैतून नहीं, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, फाकों से हैं। और फिर एक बात अर्ज़ की उस साहिल ने, शेख मैं आपसे इमदाद नहीं मांगने आया, दुआ मांगने आया। इमदाद मांगने नहीं आया, दुआ मांगने आया। मेरी दुआ फरमा दें और मुझे कोई दुआ बता दे। शेख ने सर झुकाया, फरमाया कल आना। उसने मायूसी की हालत में शेख के चेहरे पे नज़र की, लेकिन अल्लाह के वली थे, उसे भरोसा और एतमाद था। और याद रखिएगा जिसको मिला है एतमाद पे मिला है, और जिसको मिला है भरोसे पे मिला है, भरोसे में मिला। अगली दफ़ा आया, अगले दिन आया तो खामोश बैठ गया, वो नहीं बोला और खामोश बैठा रहा। हज़रत ने उसके कंधे से पकड़ के उसे अपनी तरफ मुतवज्जे फरमाया। फरमाया मुझे तेरे दर्द, तेरी तंगदस्ती, तेरी ज़ुबान हाली का एहसास है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं 3 दिन मुसलसल अल्लाह के अवामिर की तरफ मुतवज्जे हूँ। 3 दिन मुसलसल मैं अल्लाह के ख़जानों में देख रहा हूँ कि तेरे लिए कोई रिस्क का ज़र्रा है, कोई रिस्क का दरवाज़ा है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक दूर रोशनी नज़र आ रही है और वह है 10 मुहर्रम का, आशूरा का दिन। एक तेरे लिए रोशनी है, वो नज़र आ रही है। अगर तू उस पर मुतमिन होता है तो फिर तेरी 10 नस्लों के लिए रिस्क के दरवाजे हैं। और फरमाया, सीने पे हाथ रख के फरमाया, हसन इस बात का अल्लाह की रहमत से गवाही देता है कि तेरी 10 नस्लों में रिस्क, वुसअत, बरकत के दरवाजे। जब उसने 10 नस्लों की बात सुनी, उसका सांस में सांस हौसला आया। और वो बेचारा जो मायूसियों में चला गया था, उसके अंदर कुछ जान और रमक आई। तो कहने लगा, हुजूर आप फरमाए मैं क्या करूं? फरमाया रोज़ी कर, मेहनत कर, रोज़ी कर, मेहनत कर, और कुछ कमा, कुछ बचा, खा भी सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा आशूरा के दिन के लिए बचा, थोड़ा थोड़ा 10 मुहर्रम के लिए बचा। जब 10 मुहर्रम करीब आए तो यकम मुहर्रम को मेरे पास आ जाना, यकम मुहर्रम को मेरे पास आ जाना। कहा ठीक है। वो चला गया। यकम मुहर्रम से पहले वो आ गया। शेख ने देखा, पहचान लिया, उसे बिठाया, मोहब्बत दी। फरमाया अब जितने पैसे तेरे पास हैं, तो उसने कहा चंद दिरहम है और मैं बहुत हैं। चंद दिरहम ऐसा कर, घर वालों पे खर्च कर 10 मुहर्रम को। ये चंद दिरहम 10 मुहर्रम को घर वालों पे खर्च कर, क्योंकि आका का फरमान है जो आशूरा के दिन अपने घर वालों पे रिस्क की वुसअत करेगा, आशूरा के दिन 10 मुहर्रम के दिन अपने घर वालों में को खुला रिस्क देगा और उन पे खर्च करेगा। एक रिवायत में है खुला, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, एक में है खर्च, जितना तौफीक हो खर्च करेगा तो अल्लाह जल्ला शान हो उसकी नस्लों को फ़क्र फाके से बचाएंगे और अल्लाह उससे राज़ी होंगे और उसके लिए जन्नत के वादे हैं। आपने उसे वादे सुनाए और वह चला गया। साल के बाद आया,
تو دیکھا کہ ایک دور سے ایک شخص ہے جس کے ساتھ 3 اونٹنیاں ہیں، ایک پہ خود بیٹھا ہے، 2 پیچھے چل رہی ہیں۔ اس نے آ کے اونٹنیاں بٹھائیں، بٹھانے کے بعد جب شیخ کے پاس قریب آیا تو شیخ نے پہچانا یہ تو وہی شخص ہے، لیکن آج اس کی حالت بدلی ہوئی ہے، اس کے نقشے بدلے ہوئے ہیں، اس کی کیفیتیں بہت زیادہ بدلی ہیں، کیا ہوا؟ اس نے آ کے سلام عرض کیا، ادب سے بیٹھا اور کہنے لگا حضور آپ کے عمل نے مجھے رنگ دیا، میرا ذرہ ذرہ کا کمایا ہوا تھا، میرا ذرہ ذرہ کا حلال جمع کیا ہوا تھا، اس ذرہ ذرہ کے جمع کیے نے میرے لیے حیرت انگیز رحمت اور برکت کے دروازے کھولے۔ آپ نے فرمایا یہ جو اونٹنی جس پہ بیٹھ کے آیا ہوں فلاں نسل کی اعلیٰ اونٹنی ہے، ایک شخص کو میں نے دیکھا وہ آواز لگا رہا ہے کوئی اس اونٹنی کو خرید لے، چاہے ادھار پہ لے لے اور میں اس سے پیسے بعد میں لے لوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس اونٹنی کے بارے میں تجھے کیا عیب ہے، تو اسے زبردستی آخر کیوں بیچنا چاہتا ہے؟ کہا وہ خاموش رہا، کہا کہ میاں اگر لینا ہے تو لے لو ورنہ ہم چلے ہیں۔ کہا نہیں بتائیں۔ جب میں نے اصرار کیا، کہا کہ میں نے اس اونٹنی کے بارے میں، اس اونٹنی کا خواب دیکھا اپنے بارے میں، اس کو خواب میں دیکھا، اپنے بارے میں دیکھا کہ میرے لیے یہ اونٹنی موافق نہیں ہے اور میں کسی ایسے شخص کو بیچوں جو ضرورت مند ہو، چاہے وہ ادھار لے لے۔ اور کہا وہ زبردستی مجھے کہنے کا تم لے لو۔ میں نے کہا میرے پاس 1 درہم بھی نہیں ہے، 1 درہم تو 1 درہم 1 دونک بھی نہیں ہے، 1 اوقیہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کچھ نہیں ہے، اونٹنی لے لو، اسے بیچو، جو منافع ملے تم لے لینا، جتنے کی بکے مجھے دے دینا، میں تم سے نہیں پوچھوں گا۔ کہا زبردستی اونٹنی کے لگام مجھے دے کے چلا گیا۔ کہا میں پریشان ہوا تو اچانک میرے دل میں آواز آئی، میرے بندے بن مانگے رزق مل رہا ہے، قدردانی کر، لے لے۔ بس اس آواز نے مجھے تسلی دی اور اس آواز سے میں مطمئن ہوا اور کہنے لگے کہ بس میں پھر اس اونٹنی کو لے کے چلا شام تک۔ ایک صاحب نے دیکھا، کہا واہ ایسی زبردست اونٹنی کہاں سے لی؟ میں نے کہا بیچنی ہے، واقعی بیچنی ہے، یہ تو بہت اعلیٰ نسل کی ہے، یہ لوگ تلاش کرتے ہیں، یہ تم کتنے کی لو گے؟ کہا تم قیمت لگاؤ، تم کتنے کی لو گے؟ کہا کہ اس نے 500 درہم کہا۔ میں نے کہا نہیں میں 800 سے کم نہیں دوں گا۔ کہا اپنی زبان پہ پکے رہو گے؟ کہا پکا ہوں۔ کہا چلو میرے ساتھ، میں تمہیں 800 درہم دیتا ہوں۔ کہا کہ میری لگام نہیں پکڑی جا رہی تھی، میرا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ کانپتے دیکھ کے کہا کیا ہوا، تکلیف ہو رہی ہے، کوئی لرزہ ہو گیا؟ میں کیا اظہار کروں، میں تو 1 درہم کو ترستا تھا اور 800 درہم۔ کہا اس نے میرے ہاتھ سے لگام لے لی اور مجھے خود اونٹنی میں بٹھا لیا اور پیدل جا رہا۔ اب میرا نقشہ عجب بڑھ گیا، عجیب ہو گیا، میں غلام، اب میں آقا بنا بیٹھا ہوں اور مجھے اونٹنی پہ لے جا رہا ہے۔ گھر گیا، اس نے مجھے اچھا کھانا کھلایا، بڑی عزت دی، اونٹنی کو کھانا دیا اور مجھے 800 درہم کی تھیلی پکڑا دی۔ کہا میں پریشان اس کو لے کے کیسے جاؤں؟ وہ میری پریشانی بھانپ گیا۔ کہا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا کہ میں فلاں بصرہ کی، فلاں گاؤں، فلاں بستی، فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں۔ کہا میں پہنچاؤں گا۔ اس نے اونٹنی پہ مجھے پھر بٹھایا، خود ساتھ بیٹھا اور مجھے آگے بٹھایا، خود پیچھے بیٹھا، حالانکہ اس وقت وہ مالک تھا، میں مالک نہیں تھا۔ مجھے 800 درہم دے چکا تھا اور مجھے گھر پہنچایا۔ کانپتا ہوا جب میں گھر پہنچا، میری بیوی نے مجھے لرزے کی حالت میں دیکھا تو پریشان ہو گئی، کیا ہوا؟ میں نے اسے کانپتی زبان اور ہانپتے دل، دھڑکتے دل اور ہاتھوں کی لغزش کے ساتھ یہ سارا واقعہ سنایا۔ کہا اس نے 800 درہم کی دیکھا نا تو ایک دم پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا کہیں یہ مر نہ جائے، مجھے خطرہ ہوا۔ اب کہا کہ اس میں سے ہم نے 1 درہم نکالا، کبھی تھیلی کو دیکھتے ہیں، ساری رات نیند نہ آئی اور اس 1 درہم نکال کے ہم نے گھر کا خرچ لیا۔ وہ پہلا دن تھا جب ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا کے اور اچھا کھا کے رات کو سوئے۔